children today inhabit a very, very different world from when we ourselves were children. We lived in a much more footloose and fancy free time. This isn't just fashionable to say, it is actual fact because a lot of facets of a new uncharted world that we inhabit today simply did not exist when we were kids. We are in a digital world. We are in a world led and influenced by social media. And all of these factors assert their pressures on young children and influence and impact them both physically as well as psychologically. Therefore, I think it's fair to say that the kind of resolve, self assuredness, and resilience that we needed as kids was not even a fraction of what children today ought to have in order to navigate, manage, and be successful in their lives ahead. How do we get this resilience? I suppose there are many ways, but when it comes to yoga, which particularly for us Indians, for time immemorial, has been a place of solace, has been a place of stillness, is a practice and a holistic way of life that brings a lot of calm and peace and equilibrium, it is worth investigating through that lens how we can pass on this resilience into our children. And to talk about this, I'm joined by the very sought after yoga therapist Ekta. Ekta has been on our platform earlier, and whenever there's a guest who comes back, it's a matter of great pride and joy. This, in fact, was her idea in the first place, and we found such deep resonance with it because it connects with mental health, with resilience, and with a pressing need of the hour. So I'm very, very grateful and privileged that Ekta has made time for us and for this very, very important subject. And I would like to welcome her and thank her. And we are calling this session Raising Resilient Children. This is Talk Therapy, brought to you by Driveway Devi, and I'm Karthik, as usual, on behalf of Driveway Devi. Ekta, welcome. How are you? Thank you so much, Karthik. Thank you for inviting me again. Thank you so much. तो जैसा अपनी बात हुई थी इस सेशन के बारे में आपने मुझे कहा था कि आप कुछ समय से अब ऑब्वियसली यू आर डूइंग योर रेगुलर योगा प्रैक्टिस एंड सेशंस बट इंक्रीजिंगली आप यंगस्टर्स और बच्चों के साथ काफी इंटरेक्ट कर रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं। पहले हमें थोड़ा उसके बारे में बताइए कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली और कैसे हुआ। मेरे कुछ सेशंस है जो बच्चों के साथ रहते हैं। बच्चे मीन्स टॉडलर्स 3 इयर्स से जो स्टार्ट होता है। आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स जो 3 इयर्स के हैं, 5 इयर्स के हैं, 7 इयर्स के हैं। तो उनका जो फिजिकल हेल्थ है एज वेल एज मेंटल हेल्थ, उन दोनों पे मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि अगर फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो बच्चे खेलते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, स्विमिंग, बहुत एक्टिविटीज हैं। लेकिन हम मेंटल हेल्थ के लिए हम पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर रहे। और जब बात योगा की आती है तो बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि बच्चे क्या योगा करेंगे। बट बच्चों से ही अगर अपनी बात करूँ, अपने बेटे की बात करूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो अभी से स्टार्ट करे। उसको अभी से योगा, मेडिटेशन और ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि लेटर स्टेज पे आके जो हमारी सोसाइटी है या फिर जो आने वाला टाइम है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। अगर आपके बच्चे मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनको ज़रूर करना चाहिए, वो बहुत हेल्प करेंगे उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। आपने कई बहुत जरूरी चीजें कही हैं। मैं
खामखा बिल्कुल प्रॉब्लम्स को नहीं कुरेदना चाहता, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये रिजिलियंस बिल्डिंग क्यों इतना जरूरी है, इस वजह से हमें ये भी जानना और रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि आजकल के बच्चे किस तरह के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आगे जाके क्या फेस करेंगे. यू हैव ऑफ कोर्स स्पोकन अबाउट इट, बट मैं चाहूंगा कि उसके बारे में अपन थोड़ा और डिटेल में बात करें. एंड इत्तेफाक से, आई मीन एक्चुअली इट इज नो कोइंसिडेंस कि इतने सारे जो, जिन्हें हम ट्रेडिशनल थेरेपिस्ट भी कहते हैं, जो ट्रेडिशनल साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, आजकल वो लोग अपने खुद के ट्रीटमेंट्स में एज पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट्स दे आर रिकमेंडिंग, मतलब वो लिटरली प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं कि भाई मेडिटेशन करो और योगा करो. सो इट इज नॉट जस्ट yoga practitioners who are saying this, everybody is saying this and everybody is realizing the importance. But मैं ये जरूर चाहूंगा, because you are a mother yourself, because you have observations right under your nose at home, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं अभी ऑलरेडी या आगे जाके स्पेसिफिकली जिनसे बच्चों को कंटेंट करना पड़ेगा, जिस वजह से ये और भी जरूरी हो जाता है कि अपन ये काम अभी करें. सबसे पहले तो कार्तिक मैं कहूँगी, आई हैव सीन लाइक बच्चों में जो प्रॉब्लम है वो है एंगर इश्यूज. गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पेशेंस ज़ीरो है. कुछ गलती हम पेरेंट्स की भी है. वो रीज़न इज़ कि जो बच्चे को चाहिए हम उसको दिलाते हैं. आज अगर हमें लगता है हम उनको बेस्ट लाइफ दे रहे हैं, अगर उसको आईपैड चाहिए हम नेक्स्ट डे ऑर्डर कर देंगे. कोई भी गैजेट्स या फिर कोई भी कुछ भी हो, तो बच्चों को उस चीज़ का फ़ायदा लेते हुए बच्चे ज़्यादा डिमांडिंग हैं. डिमांड्स बढ़ती हैं, नहीं जब पूरी होती तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, डिसरिस्पेक्ट करते हैं. और मैंने बहुत छोटे बच्चों को देखा है अपने पेरेंट्स को मतलब पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करते हुए, अगर उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बच्चों का जो मेंटल प्रॉब्लम है वो एंगर इश्यूज़ ही है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है. पैदा होते ही बच्चा ये सब नहीं सीखता, या उसका जो भी उसको मेंटली प्रॉब्लम्स है वो पैदा होने से नहीं आती. कुछ होती है प्रॉब्लम्स, लेकिन गुस्सा करने की या डिसरिस्पेक्ट करने की प्रॉब्लम्स बच्चा धीरे-धीरे अपनी जो जर्नी है स्टार्ट करता है, उसी से सीखता है. और पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है उसमें. तो मुझे लगता है कि योगा जो है, मेडिटेशन जो है, अगर वो बच्चा प्रैक्टिस करता है तो एक तो वो बहुत उसमें ठहराव आएगा बच्चे में, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा. उसको समझ आएगी हमारा कल्चर क्या है जो हम उसको बताएँगे, हमारे पेरेंट्स किस प्रॉब्लम से निकल के आज हमें ये लाइफ दे रहे हैं. ये सब चीज़ें बताना उनके लिए बहुत ज़रूरी है. तभी आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, और उसका जब वो बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो उसको भी सही और गलत की पहचान का पता चलेगा. बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है, और मैं बिल्कुल ये बात कंफर्म कर सकता हूँ एक अध्यापक होने के नाते, और उस दृष्टिकोण से, और एक पिता होने के नाते. ये जो बढ़ता एंगर है ये अवश्य है. एंड आई थिंक इट माइट बी फेयर टू से कि अगर एक थोड़ा सा इसे हम ब्रॉडली देखें, तो एक इमोशनल रेगुलेशन या एक इमोशनल संतुलन लाने की जरूरत है, जहां पे एनी एक्सट्रीम इमोशन is not present in the child for a long or sustained period of time. Also, आई थिंक आप ये इस बात से सहमत होंगे कि इमोशनल रेगुलेशन और एंगर इश्यूज के अलावा भी, इवन इफ चिल्ड्रन आर नॉट ऑफिशियली डायग्नोस्ड टू बी ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ADHD या ASD, जनरली स्पीकिंग हम सबके ही जो अटेंशन स्पैन्स हैं वो काफी कम हो गए हैं. हम कहीं भी एक बैठ के और लगातार एक एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं. हम छटपटे हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं. वी रीच आउट फॉर आवर फोन्स, वी डू स्टार्ट फिजिटिंग. तो इस सब चीजों में भी वो सेम ठहराव आई थिंक विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल एंड यूजफुल. या
एक बात और है, मुझे लगता है कि लाइक वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड, तो वी कैन नॉट अवॉइड कि हम बच्चे को फोन ना दें, हम्म हम बच्चे को लैपटॉप पे ना बैठने दें। बट इसके साथ साथ हम और क्या उसकी लाइफ में एक्टिविटीज ऐड कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हम्म ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को फोन दे दो, आप अपने बच्चे को गेम्स खेलने के लिए कुछ भी लैपटॉप दे दो और पूरा दिन बच्चा उसी पे हम्म जो कर रहा है। हम्म उसके साथ-साथ आप एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, बच्चे को ये सब आना बहुत ज़रूरी है, वो सीखे, वो सीखता भी है और फ़ोन यूज़ करे, या उसके अलावा उसकी फिज़िकली जो भी गेम्स, बाहर जाके आउटडोर गेम्स, उसको बहुत ज़्यादा जिम्नास्टिक्स में जा सकते हैं बच्चे। हम्म हम्म और ये उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ, उसकी जो ग्रोइंग एज है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम्म तो अकॉर्डिंग टू मी आप सब करिए, बच्चों को डिजिटली भी उतना ही एक्टिव रखिए, लेकिन उसके साथ-साथ आपको और चीज़ों पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एब्सोल्युटली अगेन बहुत ही वैलिड पॉइंट है वो कि एक बैलेंस स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। कोई ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा है कि आप बेसिकली यू बिकम केवमैन एंड आप अपने हाँ, बच्चे को ऐसे आइसोलेट कर दो कि वो पिछड़ जाए। वो बिल्कुल मतलब नहीं है। द पॉइंट इज दैट यू नो द स्केल्स हैव टू बी बैलेंस्ड। नाउ मेरा अगला सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक जब बहुत बार ये होता है कि दो लोगों के बीच में एक थियोरेटिकल या इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है और उसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रमाण लोगों को नहीं मिलता है। नाउ विदाउट रिवीलिंग टू मच इंफॉर्मेशन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक लोगों को आइडिया दें कि आप अपने सेशंस में बच्चों के साथ क्या करते हैं। बिकॉज इट इज वन थिंग टू से कि हाँ आई एम वर्किंग ऑन देयर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, पर वो क्या होता है और वो कैसे होता है। जब मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले तो मैं 5 मिनट के लिए बच्चे को चुप करके बैठना सिखाती हूँ कि आप बैठ जाइए, आइज़ क्लोज़ करिए एंड मेडिटेशन का मतलब उनको समझ नहीं आता, लेकिन स्टिल एक हल्का-सा म्यूज़िक बैकग्राउंड में देके बच्चे को 5 मिनट बैठाना ही बहुत बड़ी बात है। तो अगर वो बैठ पा रहा है आँखें बंद करके और आराम से सोच पा रहा है, तो स्टार्ट मेरा मेडिटेशन से ही होता है। देन थोड़ा-सा उनको फन एक्टिविटीज़ ऐड करती हूँ, कार्डियो म्यूज़िक लगा के डांस कराती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे आसनास हैं जो बच्चे एन्जॉय करते हैं, लाइक चक्रासना है। फिर उनको बटरफ्लाई कराती हूँ जिनमें उनको मज़ा भी आता है, और कुछ जिम्नास्टिक की भी एक्टिविटीज़ रहती हैं। हम्म अ, मिडल स्प्लिट सिखाती हूँ उनको और उनकी थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाए, ये सब ऐड करती हूँ। और 3 साल के बच्चे, 3, साढ़े 3, 5 साल के बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। हम्म तो उन पे ज़्यादा मुझे वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हफ़्ते 10 दिन में वो अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। और इवन कार्तिक, मैं लास्ट ईयर अपने बेटे को जिम्नास्टिक्स भेजती थी। एंड जिम्नास्टिक्स में भी 3 साल से ही स्टार्ट हो जाता था। लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड रहता था उसके लिए। उसको क्रैम्प्स हो जाते थे और बहुत पेन होता था। ठीक है, वो एक एज में आके मुझे लगता है वो भी ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। बट इनिशियली आपको अपने बच्चे को अगर जिम्नास्टिक्स में या किसी भी गेम में डालना है, तो आपको पहले उसको थोड़ा स्ट्रेचिंग कराइए और उसमें थोड़े पेशेंस लेके आइए। अगर पेशेंस होंगे तो ही वो किसी और चीज़ में आगे जा पाएगा, और पेशेंस लाने के लिए सबसे बेस्ट है मेडिटेशन, सबसे बेस्ट है योगा। और उसके साथ अच्छी बातें करिए, उसके साथ बैठ के। आजकल के पेरेंट्स बात भी नहीं करते बच्चों नहीं के, करते। नहीं करते। इवन मैं आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स जो मतलब खाना खा रहा है बच्चा और पेरेंट्स पास में फ़ोन लेके अपना बिज़ी है। तो दिस इज़ लाइक वेरी बैड पेरेंटिंग। और मैं मेरे से भी हो जाता है कभी ऐसा, बट मुझे गिल्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है इवन कि नहीं, ये दिस नहीं, वो इज़। आई थिंक इट्स अगेन इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सब वी आर ऑल वर्किंग हार्ड और हम एक्चुअली एक बहुत
लार्ज एक्सटेंट तक जो वो हार्डवर्क कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, बट वन हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कभी भी अपना फोन देखेंगे ही नहीं उनके सामने, बट Exactly. टू डू दैट ऑल द टाइम और उस वजह से उनसे कोई भी इंटरेक्शन पूरा ही सैक्रिफाइस हो जाए, ये भी सही बात नहीं। हाँ, और एक चीज और है, आप क्या देख रहे हो फोन पे, आपका आपका कंटेंट क्या है, बच्चा ऑब्जर्व करते हैं। यस। इवन कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, वो अपने कार्टून्स या जो भी आता है वो ना देख के जो यूट्यूब पे रील्स आती हैं, नॉर्मल लोगों की रील्स आती हैं, वो देखना पसंद करते हैं। और उसका वो तो समझ में आता ही है कि क्यों देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स दिखा रहे हैं और बच्चा एंजॉय करता है उसको। बच्चा टीवी पे क्या देख रहा है, बच्चा फोन पे क्या देख रहा है, इस पे भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है, वो कितना उससे लर्न कर रहा है। और एक एक प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स में देखी है, वो चाहते हैं हमारा बच्चा सब कुछ सीखे, लाइक उसकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो, वो कार्टून्स भी इंग्लिश में देखे और हिंदी में ना देखे। और ठीक है, मैंने कुछ कार्टून्स ऐसे ऑब्जर्व करे हैं हिंदी में जिसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी नहीं यूज होती, बट स्टिल आप कंटेंट देखिए, बच्चा देख क्या रहा है। इंग्लिश कार्टून्स में भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है। और मैं एक एग्जांपल दूंगी, मेरे पास एक बच्चा था, एक एक लड़का था, 5 years old। तो वो जब भी योगा करने आता था तो वो हमेशा कहता था मैं ज़ॉम्बी हूँ, मैं सबको मारूंगा। तो ज़ॉम्बी इज फाइन, ठीक है, ज़ॉम्बी समझ में आता है बच्चों के लिए, लेकिन जिस वे से वो बोलता था कि मैं सबको मार डालूंगा, मैं सबको काट डालूंगा, मैं लाइक इतनी ऐसी ऐसी लैंग्वेज, और जो बाकी बच्चे थे वो सब सीख रहे थे। और वो मुझे बहुत खराब लगा कि ये देख क्या रहा है टीवी पे। तो उसकी मदर ने मुझे बताया कुछ ज़ॉम्बी सीरियल आता है। तो ये पेरेंट्स को देखना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, उससे क्या सीख रहा है। दैट्स इट। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बच्चे काफी काफी बड़ी एज तक देयर फर्स्ट टीचर्स आर द पेरेंट्स, और वो प्योरली ऑब्जर्वेशन पे चीजें सीखते हैं। तो रियली इट बॉइल्स डाउन टू द एग्जाम्पल्स and the behavior the parents are displaying and demonstrating, and the examples they are setting, जो यूं की यूं वो adopt किए जाएंगे। So we are the ones who have to be extremely careful, mindful, sensitive कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो मेनी पेरेंट्स कम टू मी एंड से रीडिंग नहीं करता है, रीडिंग नहीं करती है। अरे द चाइल्ड हैज नेवर सीन यू ओपन अ बुक, हाउ इज ही गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग? एग्जैक्टली, लाइक आई डू योगा, तो मेरा बेटा साथ में ही मैट लगा के मम्मा मैं भी करता हूँ, तो वट एवर आई एम डूइंग वो भी करता है। अगर मैं उसको बोलूं रेहान डोंट डू दिस, टीवी मत देखो, तो ही सेड कि आप भी तो फोन देख रहे हो। तो फिर मुझे खुद ही गिल्ट फील होता है कि मैं उसके सामने कर रही हूँ तो वो तो सीखेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट कभी कभी मैं फोन पे बात कर रही होती हूँ, मैसेज कर रही होती हूँ, वो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो मुझे बार बार देखता है, ऑब्जर्व करता है। तो वो सब चीजें हमें सोचनी चाहिए एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए। और आई थिंक कुछ सालों के लिए होता है, टीन एज में आके तो बच्चे फिर अपनी ही करते हैं, उनको जो सीखना है। या एक थोड़ा ट्रिकी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, पर मुझे लगता है जरूरी सवाल है। यस प्लीज। सॉरी अगेन, एक अध्यापक के ऑब्जर्वेशन से दो स्थितियां हैं अभी। वन एक्सट्रीम इज, जिसका आपने शायद जिक्र भी किया, एक पेरेंट सेगमेंट है जो अपने बच्चों को ओवर अचीवर्स बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई 3 साढ़े 3 साल तक वो मतलब एक्सपर्ट ओरेटर हो जाए और ओलंपियन हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए। नाउ दैट इज वन एक्सट्रीम। कुछ धारणाएं एजुकेशन में और पेरेंटिंग में ये भी हैं कि जो जिस तरह से और जिन स्टेजेस और फेजेस में ह्यूमन बॉडी और माइंड का डेवलपमेंट होता है, हमें उन माइलस्टोन्स को बहुत केयरफुली ध्यान में रखते हुए
अपने बच्चों से सर्टन एक्टिविटीज करवानी चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, सेरिब्रल, एकेडमिक, स्कोलास्टिक। मेरा सवाल ये है कि जब आप कहते हैं 3 साढ़े 3 साल के बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल हैं और आप उनसे सर्टेन चीजें करवाते हैं, इज दैट नॉट टू अर्ली फॉर देयर बॉडीज टू बी पुट थ्रू दोज एक्टिविटीज? आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ नहीं मैं मानती कि 3 साढ़े 3 साल में बहुत अर्ली है। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेचिंग है जो बच्चे इजीली कर सकते हैं और उनकी कोई बोन्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी या उनको कोई ऐसा फ्रैक्चर वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। बट या जैसे मैंने जिम्नास्टिक्स की बात करी थी, उसमें मैंने देखा कि बहुत छोटे बच्चे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा वर्कआउट कराया जा रहा है। हम्म। तो वो थोड़ा मुझे ज़रूर डिफ़िकल्ट लगता है। इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। जिम्नास्टिक्स 6 साल से ही स्टार्ट ज़्यादा बेटर है। हम्म। बट येस, अगर मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आऊँ कि जो पेरेंट्स हैं ओवर अचीवर हैं, चाहते हैं हमारा बच्चा जल्दी से ये सब सीख ले, पढ़ ले, तो वो नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। अगर आपका बच्चा म्यूज़िक में इंटरेस्ट देता है, उसको उसको गाना है और आप चाहो वो आईआईटीएन बने या फिर वो फिज़िक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, तो वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट किड कि उसको कैसे उसको अपना इंटरेस्ट छोड़ के उससे निकल के दूसरे उसमें जाना है। तो वो तो बहुत सारी मूवीज भी आ चुकी हैं कि हमें अपने बच्चों के पहले इंटरेस्ट की तरफ देखना चाहिए, वो क्या चाहते हैं। बट अगर वर्कआउट की बात करें तो 3 इयर्स से स्टार्ट कर देना चाहिए हर हर पेरेंट को। एक यूट्यूब पे एक बच्चा है, आई डोंट रिमेम्बर क्या नाम है, बट उसके मैं फादर को देखती हूँ, ही इज 5 इयर्स ओल्ड। वो बच्चा हम्म। 4 बजे उठता है, हम्म। उसके फादर उसको रनिंग के लिए लेके जाते हैं, देन उसको जो भी है एक्सरसाइजेज और उसका जो स्ट्रेचिंग रहती है, हम्म। एंड ही इज वेरी काम चाइल्ड। वो स्कूल भी जाता है, 4 बजे उठने के बाद पूरा वर्कआउट करता है, स्कूल जाता है। तो ये अगर बच्चा खुशी से कर रहा है, ही इज हैप्पी। और वो ये जो खुशी है इसको समझने के लिए आपको एटलीस्ट 1 मंथ लगता है। आप ये नहीं हम्म। सोच सकते कि आज मैंने अपने बच्चे को उठाया, अगले दिन वो बहुत रो रहा है, उसका मन नहीं हो रहा जाने का, राइट, उसको राइट, हाँ, बहुत दैट इज टू सून टू मेक अ डिसीजन। तो यू कैन नॉट से कि उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है हम्म। हम्म। स्पोर्ट्स में या फिर किसी वर्कआउट में। तो आप मतलब यू टेक योर टाइम, बच्चे को भी टाइम दो, बट इसके लिए आपको भी तो उठना पड़ेगा ना 4 बजे। आप सोचो कि आपका बच्चा सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दे 5 बजे उठ के, लेकिन आप उसके पास सो रहे हो, तो वो कैसे हो सकता है? आपको ऑब्वियसली। भी अब बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, उसकी एज का, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, आई नो। आप पूरा दिन 24 आवर्स बच्चे के साथ बच्चा बन के नहीं रह सकते। आपको आप 1 घंटे से स्टार्ट करिए, आप अपने बच्चे को 1 घंटा दीजिए, उसमें आप उससे का बातें भी करिए, हम्म। उससे वर्कआउट भी कराइए, उसको पहले वर्कआउट के बारे में समझाइए कि डाइट, आपका आपका बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सब क्यों ज़रूरी है। इसके इस आने वाले टाइम में इसके क्या रिपरकशंस होने वाले हैं, ये सब आपको समझाने की बहुत ज़रूरत है। और 3 साल का बच्चा आराम से हर बात को समझता है। मैं आपकी बातें बहुत केयरफुली और ध्यान से सुन रहा था, पर मेरे दिमाग में थ्रू आउट योर रिस्पॉन्स पता नहीं क्यों दंगल फिल्म के सीन्स चलने लगे थे, और दोस टू लिटिल गर्ल्स या waking up and running and then training the whole day. चलिए, एक एक बहुत जरूरी और अहम एस्पेक्ट है इस चर्चा का, विच आई वांट टू फाइनली आस्क यू एट द एंड। आई नो यू आर नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट जब भी हम योगा की बात करते हैं, और जो ले पर्सन की समझ है दैट योगा ऑलवेज प्रमोट्स और स्टैंड्स फॉर genuinely holistic वे ऑफ लाइफ। आई नो ये होलिस्टिक शब्द बहुत ही ज्यादा अब्यूज और मिसयूज हो चुका है, बट रियली इट इज इफ देयर इज वन थिंग वे इट अप्लाइज ट्रूली इज व्हेन इट कम्स टू योगा। तो थोड़ा सा इस बारे में मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जो न्यूट्रिशनल या डाइटरी एस्पेक्ट होता है, जो एक बहुत जरूरी
एस्पेक्ट है, पर्टिकुलरली जब हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं। देर आर सर्टन फूड्स जिनकी तासीर ही गर्म होती है, वो दोज फूड्स आर नोन कि वो अग्रेशन पैदा करते हैं, ये वो। तो इस बारे में थोड़ा सा आपकी राय मैं जानना चाहूंगा। या कुछ ऐसे फूड हैं जो मुझे लगता है एग्रेशन, जैसे शुगर की अगर बात करी जाए तो आजकल के बच्चे ऑलरेडी बहुत हाइपर एक्टिव हैं। हम्म। वो कहते हैं कि उनको ज्यादा मीठा दोगे तो वो और ज्यादा हम्म। एक्टिव हो जाते हैं। हम्म। लेकिन बात उस बात पे आती है कि आप उसको मीठे में खिला क्या रहे हो। हम्म। आप उसको चॉकलेट्स खिला रहे हो, आप उसको व्हाइट शुगर खिला रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें पैकेट्स वाली जो कि बच्चे की वैसे ही ओवरऑल, नॉट फॉर ओनली दैट थिंग कि हाँ, उसको एग्रेशन हाँ, पैदा हाँ। करेगा, और चीजों में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट ऑफ करेगा। कोर्स। हाँ, मैंने कुछ बच्चे आजकल, बहुत छोटे बच्चों को डायबिटीज है। हम्म। एक न्यूज आई थी कि 6 इयर्स और 6.5 इयर्स के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ। हम्म। एंड द रीजन इज कि डाइट। ऐसा तो हम्म। नहीं है कि वो बच्चा पैदा होते ही ऐसा हार्ट लेके पैदा हुआ कि उसको हार्ट अटैक 6 साल में आ गया। और हाँ, कुछ पर आई थिंक पेरेंट्स, ये, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये इतना ज्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, सब चीज में शुगर होता है। ऑल ऑफ दिस इज लीडिंग टू मैं कल ही मेरी एक बहुत सुंदर चर्चा हुई थी एक ऑन्को साइकोलॉजिस्ट के साथ, जहां हम कैंसर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डिस्कस कर रहे थे। एंड आई वाज टेलिंग हर कि जब हम बच्चे थे, तो वंस इन अ ब्लू मून रेयरली हमें न्यूज आता था कि फलाने फलाने को या फलाने फलाने फैमिली में किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है या डायग्नोस हुआ है। अब मतलब मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं, और बहुत हेवी हार्ट के साथ कह रहा हूं कि every family you interact with, someone or the other you will hear has cancer. इतना कॉमन हो गया है, and all this is largely happening because of the poison that we are putting into our bodies. ट्रू, ट्रू, राइट, बिल्कुल। देखो डाइट, अगर बच्चे के हम डाइट का बात करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है तो हमें देना पड़ता है, क्या करें, हम्म। कुछ तो हम्म। खिलाना है। हम्म। आप उसका बचपन से, जब वो 6 मंथ्स का, आई थिंक 6 मंथ्स में स्टार्ट करता है बच्चा खाना, आप उसके टेस्ट बड्स बनाना स्टार्ट करो। हम्म। आप उसका कैसा टेस्ट डेवलप कर रहे हो ये आप पे है। आप उसको 1 साल बाद लेज का पैकेट पकड़ा रहे हो, बहुत सारे बच्चे लेज बहुत खाते हैं, और मैंने खुद ये फील करा है कि जब हम चिप्स खाते हैं उसके बाद हमारी भूख मर जाती है। हम्म। ठीक है, तो बच्चे का तो क्या ही मतलब, उसको कितनी को भूख लगती है, अगर वो पूरा पैकेट एक चिप्स का खा ऑब्वियसली जाएगा। आप तो तला हुआ आलू खा रहे हो ना, तो भूख तो मरेगी। Exactly, और वो कहाँ खाना खाएगा फिर, उसमें बच्चे की गलती नहीं है कि वो खाना नहीं खा रहा। और स्कूल नहीं जा रहा बच्चा, चलो उसको कुछ किंडर जॉय दे दो, लॉलीपॉप दे दो, कुछ भी दे दो। वो लॉलीपॉप आप उसको दे तो रहे हो, लेकिन वो आगे जाके उसी पे आने वाला है। हम्म। हम्म। और बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, मतलब नॉर्मली मैंने देखा पानी की जगह बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, और मदर, I have seen mothers putting cold drinks in the bottle, in the दूध का bottle. दूध का बॉटल, एग्जैक्टली। उसको वो जो प्रोसेस्ड जूसेस आते हैं, रियल जूस और ये सब, सबको लगता है मतलब, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको, उस कंपनी को वो कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जो आप उसको पैकेट की चीज दे रहे हो वो आपके बच्चे के लिए बहुत खराब। इवन मैं जब फ्रूट्स की बात करूँ तो समटाइम आई फील बैड फॉर फ्रूट्स ऑल्सो, कि आजकल प्योरिटी फ्रूट्स हम्म। में भी नहीं है। हम्म। बनाना आप देखो तो मैं जब उसको खिलाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी, इसमें भी इंजेक्शन लगा है, लेकिन उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, आपको हम्म। खिलाना तो है। हम्म। पर आप उसको घर का खाना खिलाइए, आप उसको हमारा जो सबसे बेस्ट चीज है इंडियंस की, हमारा खाना सबसे बेस्ट है। Absolutely. हाँ, जो हम खाते हैं, दाल रोटी चावल मसाले, ये सबसे ज्यादा अच्छे हैं, और यही सब खाने की बच्चों को आदत नहीं है। और मुझे याद है कार्तिक, जब हम छोटे होते थे, आई स्टिल रिमेम्बर, हमारा एक मैगी डे होता था, 15 डेज में एक बार।
ठीक है, उस दिन हमें मैगी मिलती थी, उस दिन हम सब कज़िन सब इकट्ठे होके मैगी खाते। लेकिन अब मैगी इज़ लाइक कि मदर को ही मैगी बहुत पसंद है, चलो माँ बना रही है, तो बेटा आप भी मैगी खाओ। अभी मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, चलो बाहर से ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, बर्गर ऑर्डर करते हैं। बच्चे वो सीख रहे हैं एंड बच्चे चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, 6-7 इयर्स के बच्चे खुद ऑर्डर कर रहे हैं ज़ोमैटो से। Absolutely, absolutely. या तो खाना अकॉर्डिंग टू मी आप बच्चे को स्टार्टिंग से सिखाइए, दाल की वैल्यू सिखाइए, रोटी की वैल्यू सिखाइए, उसको कैसे खाना है, कैसे बनाना है और ये वो कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है बॉडी के लिए। और ठीक है, टैंट्रम्स होते हैं बच्चों के, ये नहीं खाना, आप उसको और अच्छे से बना के, उसको और अच्छे से सजा के दीजिए। और ठीक है, मैं तो यही कहूँगी बाहर का खाना तो प्लीज़ आप खुद भी मत खाइए और बच्चों को तो बिल्कुल मत दो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक अगर मैं इस पूरे चर्चा का एक तरह से सार या निचोड़ निकालने की कोशिश करूं, ऑब्वियसली योगा बीइंग एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड, तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा ही है। बट व्हाट आई हैव बीन हियरिंग रिपीटेडली आल्सो इज the need, the critical need for ठहराव and the modeling that parents will do in terms of what behavior and what behaviors the child adopts. I think these are extremely critical takeaways from this discussion. ठीक है, wonderful. Thank you so much. It's been lovely chatting with you, and what a lovely thing that you are back with us on our platform. आते रहिएगा और ये dialogue हम जारी रखेंगे. And until then, thank you very much and take good care.